Today I'm heading to Islamic University. I studied there for 4 years. I heard a lot of things have changed there. I have a meeting with a VC. So देखते हैं कैसा होता है. We are almost there. Wow. Nostalgia हो रहा है भाई. मैं 15 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ. लेकिन बहुत चेंज हो गया यहाँ. ये तो नहीं लग रहा कि कौन सी जगह है ये. सो दिस इज इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नया एडमिन ब्लॉक बाय द वे. पता है मेरे टाइम पे टोटल 2 बिल्डिंग्स होती थी, कम से कम 20 है आज. अरे लिफ्ट भी लगा के यहाँ पे. सो आई एम मीटिंग द वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ही इज अ साइंटिस्ट. ही हैज written thesis about water. So I'm going to talk about water. I'm going to talk about Kashmir, and I'm going to talk about a lot of things and Islamic University as well. Jinab. It's a pleasure meeting you, sir. Thank you. My pleasure. Thank you. I'm thankful to you that you gave me your time. I know your precious time. My pleasure. My pleasure. Thanks Thank you. a lot. Thank you. Sir, 13 साल बाद मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, and I see a lot of transformation here. And all credit goes to you because in the last 6 years, this has gone like this. हमारा curve Islamic University का ऐसे है. Who do you credit most when we see कि इतना हुआ है? Because I just heard जब मैं अभी आ रहा था बाहर से that Islamic University has also acquired some 1500 canals here and there. So tell me more about that. Yeah, no, it's a fact that this university was established in 2005. And 2006 में हमने फिर कोर्सेज यहाँ स्टार्ट किए. वी स्टार्ट विद स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज. पिछले 21 साल की आप जर्नी अगर यूनिवर्सिटी की देखेंगे, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट signature of this university has been infrastructure growth. So there has been significant infrastructure growth since its establishment. And I credit that to the government of Jammu and Kashmir because most of the funding has come from government of Jammu and Kashmir. Now, if you look at this university in terms of the academic growth, and that is marvelous. When I came here, we were offering about 27 courses. Okay. Now we are offering almost 84 courses. Wow. And double into 3. In the last 2 years only, we have increased our offerings in undergraduate degree courses by 13 new programs we have introduced. And our admissions in the last 2 years have increased by 70%. So this is one of the very fast growing universities in every aspect. If you look into the infrastructure, if you look into the academic offerings, if you look into the research. Now, if you see in terms of the land that, if you see, we have now 5 campuses. जब आप 2013 में यहाँ थे तो एक ही कैंपस था, यही एक कैंपस था. 3 बिल्डिंग्स होती थी यहाँ पे. यही एक कैंपस था. अभी जो अगर आप देखें, ये हमारा मेन कैंपस है. जो हमारा नेक्स्ट कैंपस है करीब 1350 कनाल ज़मीन पर है, 65 हेक्टेयर, जिसको हम कैंपस 2 कह रहे हैं. जो आपको पूरी आई ऑलवेज से दैट नाउ दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी दैट ओन्स अ माउंटेन. उस्तूरवन का जो इस साइड का हिस्सा है, दिस बिलोंग्स टू द IUST. इसके अलावा आप देखें जो हमारी लारमू में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हमें लास्ट ईयर ही करीब 200 कनाल ज़मीन दी है, और उसमें हमने ऑलरेडी करीब 35 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए 2 साल पहले, और अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है. इसी तरह हमने यहाँ नज़दीक में ही औंतीपोरा के कस्बे में एक इनोवेशन कैंपस इस्टेब्लिश किया. क्योंकि अगर आप देखें जो इस यूनिवर्सिटी में खासकर रिसेंटली जो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स नेशनली रिकॉग्नाइज की गई. हम कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल में 4 स्टार रैंकिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर अचीविंग दैट. एंड जो हमारा यहाँ का जो इकोसिस्टम था इतना एक्सपैंड हुआ कि वी हैड टू ओपन अ न्यू कैंपस एंड वी कॉल इट इनोवेशन कैंपस. करीब 50 कनाल ज़मीन वो है. इसी तरह श्रीनगर में हमने एक और कैंपस खोला, वी कॉल इट सिकिल कैंपस ऑफ द IUST.
एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अनदर 200 कनाल्स ऑफ लैंड. जब आप नेशनल हाईवे से ऊंटीपोरा की तरफ आते ऑन द राइट हैंड साइड, this will be the sports campus of IUST. So this is one of the very fast growing, universities, and if you see the overall development, चाहे वो academics में हो, innovations में हो, science and technology के हवाले से, infrastructure हवाले से, तो I think that is quite visible जो आप भी कह रहे हैं कि yeah. मैं कहा हमारे टाइम पे 3 बिल्डिंग्स होती थी, एंड जब मैं परसों आया एंड आई वाज लाइक कि ये तो बहुत बड़ा है, मतलब मैंने देखा नहीं था ऐसे, एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उस वक्त बहुत स्टॉल्ड ग्रोथ थी उस टाइम पे. बट कट टू द चेज. सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ साइंस, यू हैव अ PhD और डॉक्टरेट इन वाटर, एंड अभी मैं रिसेंटली जो आर्टिकल्स पढ़े, अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बोलते हैं कश्मीर में, बिकॉज आई डोंट गेट इट. ग्लेशियर्स है वहाँ पे, लेक्स है, जैसे नारानाग बेसिकली वैसे टाइप्स होंगे, एंड बहुत, क्योंकि बहुत 100-200 में भी होंगे. इज दैट समथिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट एज पीपल हियर कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो सकता है? देखिए मैं कह रहा हूँ हमेशा कि जम्मू कश्मीर का जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है दैट इज़ वाटर. और जो वाटर है वो ग्लेशियर्स से आता है, स्नो एंड ग्लेशियर्स. हमारे यहाँ बहुत बर्फबारी होती है माउंटेन्स में, वैली फ्लोर में या कश्मीर में आप वैली में देखेंगे बहुत कम स्नोफॉल जो है, बहुत डिक्रीज हुई है बहुत हद तक. लेकिन पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्नो हुई है. और इसके अलावा हमारे पास करीब 20,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, और बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, सेचिन ग्लेशियर है, कोलाई ग्लेशियर है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, जो क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, हर एक part of the earth is impacted adversely by the climate change, and we are also impacted by the climate. और climate change का एक signature है जो indicator है main, increasing temperatures. और जब increased temperature हो जाता है तो then you automatically see the enhanced melting of glaciers. Glaciers जल्दी पिघल जाते हैं, और जब ये पिघल जाते हैं तो depending upon topography, depending upon the geomorphology, उनके सामने जो एक लेक डेवलप होता है, और जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक उसमें डेवलप होता है. लेकिन मुझे नहीं लगता है, जहाँ तक मेरे अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, जहाँ तक मेरी रिसर्च का सवाल है, कि कश्मीर में किसी गुलाफ की कोई रियल खतरा है. ये तो CM साहब ने भी कहा असेंबली में रिसेंटली. ठीक है, कहीं पर हमने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ लेक्स है जो हो सकता है, उसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत है. हमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत करनी है उनमें, ताकि हम ये देखें कि ये रियली कभी गुलाफ में बेसिकली बन जाएंगे और खतरे की निशानी है या नहीं है. मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है. लेकिन ये सच है कि अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इवन चिनाब वैली में आप जाएंगे या ज़ांस्कार जाएंगे, वहाँ ऐसे बहुत से लेक्स है, ग्लेशियर लेक्स है, जो खतरे की निशानी है, जहाँ पर हमें केयर, खासकर चिनाब वैली में, क्योंकि चिनाब वैली में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है, हाइड्रो पावर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है. कुछ हमारे टाउन्स जो है बिल्कुल चिनाब के दाएं बाएं बसे हुए हैं. इसी तरह अगर हम ज़ांस्कार में देखें या लेह में देखें, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ग्लेशियर लेक्स डेवलप हो रहे हैं जो मेरे हिसाब से मैटर ऑफ कंसर्न है. लेकिन जहाँ तक कश्मीर वैली की बात है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई लेक है जो गुलाफ में ट्रांसफ़र हो सकता है, जो हमें लेकिन रिसर्च की और ज़रूरत है उसमें. जो कुछ लेक्स का जिनका नाम आया है उसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है. हमने भी गवर्नमेंट से मसला उठाया है और रिसर्च तो, लेकिन किसी फिक्र की कोई बात नहीं है कि मुझे नहीं लगता है इट इज़ अ रियल थ्रेट टू द Kashmir Valley. Like you said, climate change. So, exactly. But we all know climate change is real, and we have been seeing this in Kashmir for last 2, 3, 4, 5 years probably. Summers ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, अप्रैल से ही या मार्च से ही गर्मी स्टार्ट हो रही है, बर्फ़ बहुत कम हो रही है. मे बी लास्ट टाइम बर्फ़ 2019-20 में एक बारी बर्फ़ हुई है, उसके बाद नहीं हुई. अगेन दिस ईयर वाटर डेफिसिट है, रेनफॉल डेफिसिट है.
सो वेयर आर वी हेडिंग दैट वे? क्योंकि अब बर्फ़ नहीं हो रही है तो ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो वाटर स्केर्सिटी भी होगा। अभी जहलम एज इट्स रिसेंटली वाज एट इट्स लोएस्ट। यस, सो व्हाट नीड्स टू चेंज? देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज मसला है, फिनोमिना है, ये ग्लोबल है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना। एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। और जो इंडिकेटर्स है इसके, जो आपने बिल्कुल अच्छी तरह वजाहत की, इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, लेस स्नोफॉल और प्रेसिपिटेशन, हीट वेव्स की आपने बात की, एक्सट्रीम्स, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, जैसे 2014 का सैलाब है, 2025 में हमने देखा सितंबर में फिर ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई। ये सारे इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, और चूंकि जैसे मैंने कहा आपको, कश्मीर अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर लद्दाख देखें, तो ग्लेशियर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सरमाया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो अगर आप देखें जो अपने इंडिकेटर्स बताए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कश्मीर वैली में खासकर, कि विंटर में जो प्रेसिपिटेशन है, डेफिसिट जो है विंटर प्रेसिपिटेशन, दैट मीन स्नोफॉल का, बहुत बढ़ रहा है। दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। टेम्परेचर्स देखिए, ऑलमोस्ट जो हमारा यहाँ श्रीनगर में देखें, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी यहाँ पहली बार एस्टैब्लिश हुई है, 1886 से हम मेजर कर रहे हैं। अगर आप श्रीनगर देखेंगे, देखना चाहेंगे क्लाइमेटोलॉजिकली कैसे था 140 साल पहले 1886 में, तो आप हमारे पास डेटा है। तो उस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्नोलेस चलाइक्लान इंक्रीज हो रही है। खासकर पिछले 10 साल में हमने देखा जो हमारा फरवरी का टेम्परेचर है वो 10 से 12 डिग्री अबव दिस लॉन्ग टर्म एवरेज, जो 1886 से अब तक जो एवरेज है उससे 10 डिग्री 12 डिग्री ज़्यादा है। दैट इज़ अ वरी। और उसके साथ साथ चूंकि स्नोफॉल कम हो रही है तो हमारे ग्लेशियर्स में जो एक्यूमुलेशन है स्नो की वो कम हो रही है, और इमीडिएटली हमारा मार्च और अप्रैल में हीट वेव्स जनरेट डेवलप होते साउथ एशिया में, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप देखें, आई होप कि ये जो हमारा लास्ट 10 ईयर्स का जो वेदर सिस्टम हम देख रहे हैं, क्लाइमेट सिस्टम देख रहे हैं, इट डज नॉट बिकम अ नॉर्म। अगर खुदा न खास्ते यही सूरत हाल आगे भी जारी रही तो रियली वी विल हैव, जो हमारे ये रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है, वाटर सप्लाईज है, तो इस पर एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। मैंने, बिकॉज आई विल कम बैक टू दिस, मैंने एक वीडियो देखा है जो क्या बोलते हैं उसको, जो पाकिस्तान साइड है, स्कार्दू टू पाकिस्तान में कहीं वो प्लेन जा रहा है, एंड ही इज टेकिंग अ वीडियो एंड द पायलट सेज दैट you see that bowl out there, that is श्रीनगर वैली और कश्मीर वैली। एंड देन एक रियलाइजेशन मेरे को आती है, हम तो एक वैली है कि हमारे चारों तरफ से पहाड़ है। सो जितना भी हमारा यहाँ पोल्यूटेंट होता है, जैसे हम डीजल बहुत इस्तेमाल करते हैं कश्मीर में, एक वो भी है कि 10 साल में जो कंडम हो जाती है ना गाड़ी दिल्ली में, तो वो फिर यहाँ लाते हैं, यहाँ री रजिस्टर करके गवर्नमेंट चलाती है। बीइंग अ वेरी एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन कश्मीर, एक तो वो डीजल से, प्लस एसीज़ का इस्तेमाल बहुत स्टार्ट हुआ है कश्मीर में, क्योंकि एसी का मैकेनिज्म वही है कि ये हीट बाहर निकालता है, यानी आपके एटमॉस्फेयर में जाता है। यहाँ से रोड्स हमारे, आई रिमेंबर अ टाइम दैट वी यूज्ड टू हैव हाईवेज एंड देन वी यूज्ड टू हैव ट्रीज हाईवे के साइड से। हाईवेज बड़े बड़े हो गए, ट्रीज सारे काट दिए। Does that impact this and how much impact उसका होता है इन चीज़ों पे जो हमारा क्लाइमेट चेंज है? बिल्कुल नहीं, जो आपने कहा एयर क्वालिटी की बात की, आपने पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की बात की, कश्मीर वैली डेफिनेटली इज़ अ वैली, चारों तरफ से ढकी हुई है, सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। एक साइड से पीर पंचाल है, दूसरी साइड से ग्रेटर हिमालय है। नाउ खासकर यहाँ की एयर क्वालिटी अभी आप देखें स्प्रिंग में बहुत अच्छी है, बेस्ट, समर में देखें बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी एयर क्वालिटी ऑटम और विंटर में खराब होती है, और ऑटम में इतनी बुरी होती है कि एज बैड एज कलकत्ता, 230 240 मैंने खुद देखा है। विंटर में कभी कभी दिल्ली जैसी होती है। तो इसकी वजह नेचुरल रीजंस भी है और एंथ्रोपोजेनिक, हम भी उसके जिम्मेवार है, और लेकिन नेचुरली भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप देखिए कश्मीर जो वैली है, पहाड़ों से ढका हुआ है,
तो विंटर में जब आप जम्मू से या दिल्ली से श्रीनगर आते हैं तो आपको लग रहा है ये क्लाउड है, उसको हम बोलते हैं प्लानिटरी बाउंड्री लेयर, एक ढक्कन सा लिड कश्मीर के ऊपर होता है। जितना भी हम नीचे जलाते हैं, चाहे वो हमाम जलाएंगे, चाहे कोई लकड़ी जलाएंगे, चाहे कोल बुखारी जलाएंगे, हर एक ऑफिस में होती है बुखारी, सिक्योरिटी वाले जलाते हैं, हर कोई जलाता है उसमें। यहाँ जो बायोमास की जो बर्निंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, और कोल की भी बड़ी ये होती है। तो वो जितने भी वो ग्रीन हाउस गैसेज है, जितने वो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, तो जिनके ऊपर से लिड है, ढक्कन है, तो वो उसमें कर, तो इसलिए हमारी एयर क्वालिटी कभी कभी श्रीनगर में विंटर में एज बैड एज दिल्ली होते हैं। लेकिन जो ही स्नोफॉल होती है, जो ही प्रेसिपिटेशन है, वो सारे सेटल हो जाता है। अब ऑटम की मैं आपको बताऊं, ऑटम में क्यों हमारी एयर क्वालिटी बुरी होती है, उसकी वजह है, अगर आप देखें कश्मीर वैली में जो हमारे ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर, ऑलमोस्ट इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4000%, 40 times विद रेस्पेक्ट टू 1950। तो जब ऑटम आता है तो यहाँ प्लांटेशंस भी बहुत होती है, दैट्स आल्सो फैक्ट। तो ये जो पत्ते या जो छोटी छोटी ट्विग्स होते हैं, लोग उसको जलाते हैं, उसका चारकोल बनाते हैं। तो उससे अगर आप देखें, अगर आप ऊपर से देखें आसमान से, तो ड्रोन से देखें या जहाज से देखें, आपको हर जगह हर गांव में ऐसे प्ल्यूम्स देखेंगे धुएं के, हर बाग में वो जला, तो उससे भी हमारी एयर क्वालिटी जो है खराब होती है। तो इसके नेचुरल रीजन है, क्योंकि हम वैली है, और दूसरे हम यहाँ से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, और जो सबसे अदर इम्पोर्टेंट रीजन जो ऑलमोस्ट हमने देखा 50% रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एयर पोल्यूशन इन ऑटम एंड विंटर, दैट इज द फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल, जो हमारे गाड़ियों में इसे यूज होता है। अगर आप देखिए कश्मीर में, अगर देखिए कितने ग्रोथ ऑफ द व्हीकल्स ऑन द डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, इट हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट 30 years। तो हमारे बचपन में कहीं कहीं पर ही एम्बेसडर गाड़ी दिखती थी, अभी देख लीजिए एक ही घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां होती है। तो वो जो है, जो वो फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं, उसके बेसिकली यूज से, कंजम्पशन से एयर क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और अगर आप सोनमर्ग जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे, जो हमारे प्रेस्टीन एरियाज थे, वहाँ आप देख लीजिए स्नो स्कूटर्स आए हैं, वो सैकड़ों की तादाद में आए। उन जगहों पर भी आपको एयर पोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आई मीन दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। जो लोगों को लग रहा है कि हम गुलमर्ग या पहलगाम विंटर में जाएंगे, लेकिन अगर आप वहाँ, मैंने खुद ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन इन जगहों पर मेजर की है, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द national standards or international standards. Then I mean it is on to us Kashmiris only then कि खुद ही रोकना है ये चीज़ें करना। like हम जब दिल्ली का पोल्यूशन देखते हैं ना, तो वहाँ वो कहते हैं कि स्टबल बर्निंग हो रही है पंजाब से, तो ये आ रहा है, तो हमारा भी काइंड ऑफ वही हो जाता है कि हम भी बर्न करते हैं चीज़ें। व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स टू दिस? देखिए ये बात सही है, क्योंकि अगेन अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो हम ईवी बोलते हैं, लेकिन ईवी में भी अगेन आई हैव हर्ड इट, आई हैव नो एम्पिरिकल डेटा ऑन थिंग्स, मे बी यू कैन हैव। वो कहते हैं कि ईवी बनने के लिए भी बैटरी चाहिए होती है, उसको बनाने के लिए बहुत हमें कोल का इस्तेमाल करना पड़ता है या कुछ, या रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए होती है, जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ चाइना के पास है एंड किसी के पास है नहीं। हाउ मच ऑफ एन ईवी थिंग इज राइट देन? ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक तो आपने जो कहा कि एक तो लोकल सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम वैली है, माउंटेन्स है, तो बहुत ज़्यादा जो इंटरनली जनरेट होता है उसका असर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से नहीं आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आती है, हवाएं कहाँ से आती, विंड्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वही मॉइस्चर लाते हैं, लेकिन वो पोल्यूटेंट्स भी लाते हैं। तो आप देख लीजिए अटलांटिक ओशन से होके फिर वो वेस्ट एशिया मेडिटेरियन कैस्पियन सी से फिर वो हमारे यहाँ बारिशें भी लाती है और पोल्यूटेंट्स भी लाती है। तो कुछ सोर्सेज बाहर से भी आते हैं। नाउ सोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स सोल्यूशन जो है, आई मीन देयर कुड बी मनी सोल्यूशन। जैसे मैंने कहा, अगर हम ऑटम की बात करें, ऑटम में जो है हमारा जो
एयर क्वालिटी ख़राब होती है वो मोस्टली बायोमास बर्निंग से, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो झाड़ियाँ हो, चाहे वो जो भी है जो लोग यहाँ जलाते हैं ट्विग्स, तो उससे बहुत ख़राब होती है। तो वी शुड बेसिकली बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्चर्डिस्ट्स, जो हमारे यहाँ बागबान है, चाहे जो हमारे यहाँ ये और फार्मर्स है, तो मुझे लगता है उनके हमें चाहे कोऑपरेटिव्स उनको इन्वॉल्व करने हैं, उनको कोऑपरेटिव बना के एक गांव में जितने भी ये रेजिडुअल मटेरियल जनरेट होता है उसको वुड पैलेट्स में चेंज कर ले। वुड पैलेट्स हमारे लिए हमारे घरों में, हमामों में यूज़ हो सकते हैं, ऑफिसेज में, बुखारियों में भी यूज़ हो सकते हैं, ये एक सोल्यूशन है। इसी तरह हमें एक इनकलकेट करना है a spirit of environmental conservation or I will say concern for the environment, तो उसमें जो है उसमें बहुत स्कोप है। जैसे आप मैंने कहा कि अब किसी घर में 2-2 गाड़ियाँ भी है, 3-3 गाड़ियाँ भी है, या इंस्टीट्यूट्स लाइक IUST कश्मीर, बड़े इंस्टीट्यूट जो है कारपूलिंग का एक हैबिट मुझे लगता है डेवलप करना चाहिए हमें। और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए। अगर एनवायरमेंटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न तो मेरे ख्याल से इतना भी इजीली फाइनेंस लोन या इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा अगर आप बढ़ाएंगे तो थोड़ा you will basically also ease out the situation, number of cars on the, अभी देख लीजिए एनर्जी क्राइसिस ग्लोबली कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आई एम श्योर ऑल द नेशन गवर्नमेंट्स, चाहे हमारा मुल्क हो चाहे बाकी ममालिक हो, मुझे लगता है रिथिंक है एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। तो उसके हवाले से जो आपका थर्ड क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बेसिकली वी आर कमिटेड एज ए कंट्री। अगर आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो में जो कॉप मीटिंग हुई थी उसमें कहा कि इंडिया विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। दैट मीन्स 27 में हर एक व्हीकल जो हमारे रोडों पर होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। और 2030 जो ऐसे सिर्फ 4 साल दूर है, 2030 में हमारे सारे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो इसमें lot of actions need to be taken, lot of programs need to be rolled out, but this is an international commitment. This is a commitment to the international community कि हम ये करेंगे और we are bound to do that by 2070 and there are milestones जैसे मैंने कहा। तो मुझे लगता है उससे एक होप है कि government will invest into these, government will put the policy frameworks in place, तो उससे environment पर भी अच्छा असर पड़ेगा। सर एक एनेक्डोट है मेरा यहाँ पे, मे बी आई डोंट नो हाउ इट विल साउंड, बट राइट नाउ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, व्हाट वी कॉल इट, एंड उसका सारा इम्पैक्ट मे बी इस साल अगले साल कश्मीर को वी हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ इट, क्योंकि हमारा जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो वहीं से आता है। एंड यहाँ से दीज पॉलिटिशियंस और ऑल दीज पीपल दे से कि पोल्यूशन है, क्लाइमेट ये है, क्लाइमेट वो है, एंड ऑन दी अदर साइड जो ये बम्बार्डमेंट्स करते हैं वहाँ से जितना इशू होता है। सो आई मीन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट अगेन ये मेरे दिमाग में आता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ US एंड दे डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स और वट एवर जो भी होता है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, बट क्लाइमेट चेंज तो बस फिर नाम का ही है कुछ लोगों के लिए। देखिए ये ऑफ कोर्स अमेरिका इज ऑलरेडी आउट ऑफ द क्लाइमेट फ्रेमवर्क जो हमारे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। तो ट्रम्प साहब जो है उन्होंने कहा आई विथड्रॉ फ्रॉम दिस, तो बिकॉज इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिका, because America is the biggest emitter, polluter in the world. Yes, wow. Because under the United Nations Framework Convention on Climate Change, they have to do a lot of things to, ease out this situation, climate change की जो है. So they are a large contributor to the climate change. तो इसलिए वो is out of the framework. Now आपका जो सवाल है ये बहुत ही important सवाल है. I think globally everybody is concerned about the war and then energy security. I'm sure a lot of things will change in the world, moving from fossil fuel based energy to renewable energy, all that I think after this there will be a lot of thinking globally and nationally also. Lekin as far as a Kashmiri I'm also concerned,
फॉर द एनवायरमेंटल रीजंस। हमारे यहाँ एक कहावत है, कश्मीर में एक कहावत है कि तेलिपे क्रुहन शीन, करेक्ट, ब्लैक स्नो। आप कहते हैं कि ये तब पॉसिबल होगा अगर जब यहाँ ब्लैक स्नो होगी। तो आपको पता नहीं, आप यंग है, लेकिन 1990 में जब ईरान और इराक का वार हुआ, मिडिल ईस्ट में जो वार हुआ, कुवैत, ईरान, इराक जो वार हुआ, तो उसमें उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ऑयल जो रिफाइनरीज थे, ऑयल प्लांट से जलाए गए, बम्बार्डमेंट हुई। तो हमारे यहाँ कश्मीर में we had a black snow. Kruhun Sheen Pyo Kashir was 1990. I have sampled that black snow in Sonmarg. तो सोनमर्ग में हमने देखा क्योंकि जो वहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए, जो वहाँ से हवाएं वहाँ से आई, मॉइस्चर आया, तो उसके साथ साथ वो पोल्यूटेंट्स भी आए। जब वो प्रेसिपिटेट हुए सोनमर्ग में, तो इट वाज ऑल ब्लैक स्नो एंड वी कुड फाइंड द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन देयर। मेरा खदशा है कि खुदा ना खास अभी जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक हो रही है, विंटर में बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर आप आज देखें जो हमारी यहाँ बर्फबारी हो रही है कहीं पर भी, तो यू विल फाइंड द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन देयर, यू विल फाइंड द पोल्यूटेंट्स व्हिच हैव कम from the Middle East there. So if this continues, then it could be some environmental impacts we have. As I said, कि सारे pollutants हमारे यहाँ पर ही जनरेट नहीं होते। करेक्ट, बाहर से आते हैं। कुछ पोल्यूटेंट्स जो है बाहर से आते हैं, और ये पोल्यूटेंट्स जो है, जो इनका जो ट्रेजेक्ट्री होती है, इट डिपेंड्स ऑन द विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड। तो जितने विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ जल्दी आ जाएंगे। अब डायरेक्शन यहाँ से हुई, अफगानिस्तान की तरफ गई, चाइना की तरफ, तो बट देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फाइंड द ट्रेसेस ऑफ द पोल्यूटेंट्स दैट आर जनरेटेड from the Middle East because of the burning of these refineries, because of the attack on the some of these facilities. I think that's a concern. So there is a chance कि अभी तो चलो स्नो नहीं होता है, कि एसिड रेन भी कहीं कहीं पे होता है, Exactly, yes. which will damage our agriculture and horticulture, which is basically the backbone of Kashmir. Yeah, exactly. Yeah, it will impact. अभी flowering हो रही है, तो it depends upon the intensity of those winds. It depends upon the amount of concentration of the pollutants in the air and all that. But I think that's a concern because our wind system is determined by westerlies. तो वहाँ से तो आती ही रहती है। और एक सवाल मेरा था, जो वाटर हमारा अभी जो हमारे मेन रिवर्स है, जैसे झेलम है, झेलम में तो चलो बहुत नीचे है अभी, लेकिन जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आती है पुलवामा से, कुलगाम से, शुपियन से, एंड उन ट्रिब्यूटरी से ही एग्रीकल्चरिस्ट को पानी जाता है। एंड आई हैव सीन दिस पहले बैक इन 1950s-60s कश्मीरीज यूजुअली यूज्ड टू पैडी हम लगाते थे, एंड देन आई डोंट नो, आई गेस शेख अब्दुल्ला सेड कि नाउ इस लागोवन अंबर, जस्ट बिकॉज, सो आई डोंट हैव क्लियरली कि किसने बोला था इस वो अंबर, बिकॉज एप्पल को थोड़ा कम पानी चाहिए होता है एज कम्पेयर टू पैडी। And in recent times, I've seen people switching from apple to plum or other things. Do you think कि आगे चल के maybe 2 years, 5 years, 10 years down the line कि बहुत जगहों में पानी नहीं पहुंचेगा इन एग्रीकल्चरिस्ट को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखें कश्मीर में, जो मैं कह रहा था कि 1950 से लोगों ने शिफ्ट करना स्टार्ट किया फ्रॉम पैडी कल्चर टू हॉर्टिकल्चर, आई मीन फ्रूट ट्रीज एंड ऑल दैट। ये 1950 से स्टार्ट हुआ, और 1950 से अभी तक आप देखें करीब 40 टाइम्स हमने इसका एक्सपेंशन हुआ हॉर्टिकल्चर में, 4000% इंक्रीज हुआ। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा पैडी कल्चर भी डिक्रीज हुआ। उस टाइम 1950 में हमारा सारी पैदावार ही, हमारी प्रोडक्शन राइस की है, तो वी वेर सेल्फ सफिशिएंट। अभी हमारी ऑलमोस्ट 80% जो हमारी राइस की रिक्वायरमेंट है वो बाहर से आती है, ऑलमोस्ट 80%। तो लेकिन ये है कि हमने स्विच किया फ्रॉम पैडी टू apples for 2 major reasons that are very good. I will say the benefits of that. One is the economic reason. We get 5 to 6 times more economic returns from fruits compared to the rice. The other thing is, हालांकि कश्मीर जो है, कश्मीर is part of the water tower of Asia. तो इसलिए हम वाटर टावर पर बैठे हैं। मैंने कहा करीब
20,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स है यहाँ। कहीं कहीं पहाड़ियों पर 4-4 मीटर भी स्नो पड़ती है, उससे भी ज़्यादा पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्स है हमारे साथ, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वाटर की हमारे यहाँ सिचुएशन कम तो हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी किसी गांव में आज से 30 साल पहले एक छोटी सी नदी आपके घर के पास से गुजर रही थी, आज नहीं है। दैट इज़ अ फैक्ट। सो द अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्स है डिक्रीज, लेकिन हमारे पास चूंकि इतना मैसर है पानी कि हम वाटर टावर ऑफ एशिया पे है, तो इसलिए हमारे से यहाँ बहुत पानी ऐसे ही जाता है नीचे, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू यूज इट। जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो हमारा ऑलमोस्ट 170 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर, दैट इज That's a lot. लॉट ऑफ वाटर, वो जाता है नीचे। और जो हमारा हमसाया मुल्क है खासकर पाकिस्तान, उसकी 80% वाटर रिक्वायरमेंट पानी से मिलती है, यहाँ के पानी से मीट होती है। तो इसलिए हमें वाटर पे इट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न। और मेरे रिसर्च के हिसाब से जो हमने रिसर्च किया है, जो हमारी वाटर सप्लाई है और जो हमारी वाटर डिमांड है, ऑलमोस्ट 2060 आज के बाद, अभी 40 साल के बाद भी वी विल नॉट हैव अनमेट डिमांड। जितनी हमारी सप्लाई होगी उतना डिमांड। 2060 के बाद हमें जो है पानी की किल्लत महसूस होगी, और वो भी मैनेजेबल है। मुझे लगता है अनदर 30 ईयर्स इस सेंचुरी के एंड तक हम मैनेज कर सकते हैं, अगर हमारे पास मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी अच्छी हो, हम अच्छी तरह से कर ले। लेकिन आपने देखा होगा आजकल भी लोग जो ये पॉडकास्ट देखते होंगे, वो कहेंगे आज भी हमारे यहाँ पानी नहीं है। लेकिन वो वाटर सप्लाई की का इशू नहीं है, वो वाटर मैनेजमेंट और लैक ऑफ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट का। अगर हम अपने पानी को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ, तो हमें एंड ऑफ सेंचुरी नेक्स्ट 75 ईयर्स में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इतनी है। लेकिन अच्छे सस्टेनेबल जुडिशियस वाटर मैनेजमेंट प्लान्स की ज़रूरत है। आप सर कितने टाइम जापान में रहे हैं? हमने जापान में आपने पढ़ा क्या क्या? Almost I was there for 7 years. So I did my PhD from University of Tokyo. And then I was a scientist at the Japan Space Agency. So it used to be called NASDA, National Aeronautical Space Agency, just like NASA. NASA, National Space Development Agency, NASDA. So then now it is named as JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency. Is there a cultural difference between Japan and Kashmir? How much? Because I always see on videos कि Japanese ऐसे करते हैं and बहुत respectful होते हैं। Yeah. और even when you speak to them, they don't like that tone कि आप अगर higher tone में बात करें उनको बुरा लग जाता है। So क्योंकि मेरी एक बार बात हुई and he didn't like it. I was like, okay, maybe I am doing something wrong. Yes. So maybe you know more about Japanese culture is completely different than Kashmir. So if you see, it's completely different in every way. So you said that they are very polite, definitely. If you see Japanese, they speak in a very subtle low tone. pitch, Yeah, correct. very low pitch, and so it is regarded as a I would say bad habit or bad character if somebody speaks very loudly. So in Japanese, if you see, it is very difficult to enter into a conversation with the Japanese. So they are very, very, very reserved. Even in the same organization, two colleagues, they will not talk much except on, maybe on their profession, on their, commonalities and all that. As a society, it is very reserved and almost, I would say, completely non-interfering. They don't bother. They don't bother about what you are doing, what you are up to. So I think there's a lot of difference in every way. मुझे पता है क्या दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई जापानीज कश्मीर में या इंडिया में गाड़ी चलाएगा क्योंकि हॉकिंग होती है, so they don't do that. इनको कितना बुरा लगता हो. So when I was in Japan first time, it was a surprise. That nobody blows the horn. So Everybody here will if blows you hear the horn, that means it is really some some problem. That why somebody will blow the horn. And then if you look as
as a community or as a as a nationality also they are workaholic, so there's no comparison. I have seen Japan's going to work after dinner also. You are in an office, so you just वर्क कल्चर बहुत have an अच्छा है. early dinner at 6 o'clock, 7 o'clock, and then they go back to the work and leave around 11, maybe 10 after 10, and they basically the culture of timeliness, punctuality, that is a hallmark of Japanese culture. So Japanese will not be late by even a minute. So if you see, and that is all over the country in every sphere of human activity. Trains, if a train has to go from, let us say, South Kashmir to North Kashmir, it will not be late even by 1 second, 2 seconds. So that culture is in the meetings also. If you have to come at 8 o'clock, everybody is seated At 8 in the meeting hall 2 minutes, 3 minutes early. They will not come very early also, but 1 minute, 2 minutes, but meeting will start at the exact time. I mean, अभी 2026 है and मैंने अभी रिसेंटली जापान के वीडियो देखे थे. इट्स वेरी क्लीन, द वाटर इज क्लीन. जैसे ड्रेन्स में पानी जाता है वो भी साफ है. Exactly. एंड वहाँ वो फिशेस है छोटी छोटी. एंड आई वाज एक्चुअली पजल्ड कि ये तो बहुत लोग आगे हैं. इनफैक्ट दे हैव सीन अ वॉर एज वेल. But it has not always been like this. If you look, let's say 50 years back, so in the race for development, Japan is a very developed Correct. country. So after the World War II, I mean, how much they suffered. The country was destroyed. Yeah, Hiroshima and Nagasaki. And Hiroshima and Nagasaki, there was this, atom bombs on that, and the country was destroyed. And then they started rebuilding it. When they rebuild it, really, you'll see very hardworking, people, Japanese, and so there was a lot of industrialization, and many of their water resources, many of their rivers became highly polluted. So you are seeing this, clean water now. But since their economy grew at very fast rate, so they could afford to clean up all that. So if you see the Tokyo Bay, Tokyo is situated on the Tokyo Bay, and you could see the waters from that, the fish from the waters of Tokyo Bay was carcinogenic. At certain point in time, about Because of the atom bomb and pollutants. Because of the, so they cleaned up. Now you can, so they really have taken care of the environment. So that's and then the sense of cleanliness. And I will tell you another thing also. In Japan, I mean, the one similarity between Japan and Kashmir at least is one. There's a one. We are vulnerable to earthquakes. They are also vulnerable to earthquakes. Now, the sense of preparedness, the culture of disaster preparedness, the disaster consciousness is very high. In Japan, many people, a significant proportion of the population goes to bed every night with this belief कि आज बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है. They have that belief. They are in the same seismic 5-6 zone. Yeah, they are much higher seismic zone. You had a 2011 2011 में वहाँ पर 9 magnitude का अर्थ आ गया. You can't imagine 9 magnitude reactor scale. So जब वो जाते हैं सोने तो they don't sleep on the beds. जैसे कश्मीर में Wagispet, Pajjanpet, Lukshangan, they do it today also. They call it tatami. tatami पे सोते हैं वो नीचे, और उनके पास एक बैग होता है, छोटा सा एक बैग होता है, और उस बैग में क्या होता है, there is a helmet, there is a torch, there is medicine, everything, essential medicine for if it is somebody is emergency का सारा चीजें, if somebody is diabetic और कोई terminal disease है किसी को, वो essential medicines है. There is water, there is glucose, there is some food, basic. And they just put it near their bed, thinking that if an earthquake of 5 magnitude comes here, and if I am trapped here, so there should be something to eat, or there should be something, there should be torch to show, and the rescuers will come. यहाँ पर हमारी vulnerability बहुत high है. We don't care about that. I don't talk in my home कि आज
खुदा ना खास्ता अगर बड़ा जलज़ला है, मेरा जो बुज़ुर्ग है उसके साथ कैसे मैं इवैक्यूएट करूं, मेरा बच्चा है उसको कैसे मैं, कोई ना हमारी इंडिविजुअल फैमिलीज़ में है, ना इंस्टीट्यूशंस में है, ना स्कूल्स में, ना कम्युनिटीज़ में है, ना हमारे इमाम साहिबान कभी इस पर बात करते हैं। और घर में भी वी थिंक इट इज़ ये फेशल पे मुतलिक ना कथ कर ये टच कर की सॉरी खुदा सबस्तान था I even once read कि there is a fault line near लाल मंडी, जहाँ पे वो म्यूजियम है ना, एक फॉल्ट लाइन वहाँ पे है, एक बारामूला में वो जहाँ पे काजीनाग रेंज हमारी स्टार्ट होती है तो वहाँ से भी है, एंड 2005 का अर्थक्वेक तो हम सब ने देखा ही है कि उससे देखिए हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसको बहुत हाई है, और सारा जालिम जो है वेरीनाग से लेके इट फॉलोज अ फॉल्ट, सो सारा जालिम आपका फॉल्ट है, इट्स अ मेजर फॉल्ट इन कश्मीर, सो ये सारा इट फॉलोज द जालिम फॉलोज अ फॉल्ट। लाइफ इज़ डिफरेंट इन कश्मीर दैट वे, हम सब कुछ नॉर्मलाइज किया हुआ है कि सेस्मिक जोन 5 है कि ठीक है, सैलाब आते हैं कि ठीक है। अब सैलाब पे मेरे को एक चीज़ आता है, क्योंकि बिकॉज यू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट वाटर, सो आई गेस दिस इज़ द राइट क्वेश्चन टू आस्क। हमारे पास होकर सर होता था, बेमिना होता था, इंदिरा नगर होता था, जो ना वेटलैंड था, उस सारे पे मकान बनाए, पानी कहाँ जाएगा? जब पानी आता है तो पानी ऑब्वियसली वहीं वापस जाएगा। अभी जो सितंबर अक्टूबर में फ्लड आया था ना श्रीनगर को, रक्षालना टेंगन, आई सी दैट अभी भी पानी वहाँ पे स्टैगनेंट है, अभी भी वहाँ से निकला नहीं है। हु लेट्स दीज कंस्ट्रक्शंस गो? आई मीन गवर्नमेंट कैसे, आई मीन आई नो यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट और व्हाटएवर, बट गवर्नमेंट कैसे ये करने देती है, या हम ही लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये ओस अभी ज़मीन अत ई वापस आप पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, जहाँ से वो चलता था इट विल गो देयर, बट स्टिल वी मेक हाउसेज एंड देन वी क्राई कि सैलाब आया। महजूर नगर, बेमिना, होकर सर, इंदिरा नगर, मे बी शिवपुरा इलाका, वहाँ से भी होता वेटलैंड, इट्स ऑल बीन ऑक्यूपाइड एंड मकान बना दिए, एंड देन वी क्राई फाउल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए अगर कश्मीर देखे, कश्मीर वैली खासकर, इट्स अ फैक्ट दैट एंड वी फील प्राउड ऑल्सो, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है ये कहने में कि इट्स अ पैराडाइज। बोलने में है भी, अगर आप जाएं इफ यू गो टू माउंटेन्स, आई मीन ये जो हम कहते हैं अगर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त हमी अस्तो, this is a fact. Correct. Maybe not the Srinagar city, maybe not the the other settlements, other towns, but if you really go to mountains, जो हमारे landscape is one of the most picturesque landscape. True. I mean, God has been very kind to us, as we have inherited one of the most picturesque landscapes. उसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन मतलब if you look at the evolution of Kashmir basin, हम इसको कहते हैं कश्मीर वैली को, if you look at scientifically, geologically, geomorphologically, तो ये पहले एक सती सर था, correct, just 75,000 years before 75,000, तो उड़ी गार्ज जो है, उड़ी की तरफ वो ब्रीच हुआ, खादियार के पास, इट स्टार्टेड ड्रेनिंग आउट। जब ये ड्रेन हुआ तो मेन जो ड्रेनेज इस वक्त है वो जाहलिम है, और जाहलिम के लेफ्ट और राइट देयर आर दीज वेटलैंड्स, वाटर बॉडीज, thousands, I'm talking in the past. तो एंड कश्मीर वैली, बाहर के लोगों को लगता है कि कश्मीर वैली बड़ा माउंटेनस है, माउंटेन तो बिल्कुल ये तो वैली फ्लोर जो है बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल आप साउथ से नॉर्थ तक आपको 5-6 मीटर का ही ग्रेडियंट मिलेगा, जहाँ से जाहलिम फ्लो होता है नीचे, तो जहाँ इस टाइप की टोपोग्राफी हो, जैसे वैली फ्लोर है, these are highly vulnerable to earthquakes, to floods. These are highly vulnerable to, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया था, एक तो ड्रेनेज था ही लेफ्ट एंड राइट, जब भी सैलाब आते थे मेन जो प्रोटेक्शन है हमारी नेचर की, दैट इज द वोलर इज द लार्जेस्ट फ्लड बेसिन। जितना भी पानी कश्मीर में सैलाब आता है तो इट अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वेट इनटू वोलर, और ये जो लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं जो हमारे वेटलैंड्स थे, वाटर बॉडीज थे, जो ही फ्लड आता था, जो ही सैलाब आता था तो पानी इनमें जाता था, स्पिलओवर उधर जाता था। और ये एक बिल्कुल फैक्ट है, मेरे बचपन में भी ये एक
लोग जो है लोग सैलाबी ज़मीन में मकान नहीं बनाते थे। अगर कोई बनाता है गाँव में शहरों में तो उसको बड़े हकारत की नजर करते थे, correct, हाँ। नीचे कि ऐसे ये कैसे इन्होंने होता मकान? इन्होंने ये मकान बनाया सैलाबी ज़मीन में, ये वो बनो सैलाबी ज़मीन है मकान ये कहाँ आम। अगर आप सेटलमेंट्स भी देखें कश्मीर वैली में सारे जो ट्रेडिशनली सेटलमेंट्स थोड़ा एलिवेटेड करेक्ट गाँव है, ऊपर थे, इधर एग्रीकल्चर इधर है तो थोड़ा सा 1-2 मीटर एलिवेटेड है तो वहाँ तक सैलाब नहीं है। अब जो है पिछले 30-40 साल से ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल ख़त्म हुआ। लोग जो है जहाँ चाहे वहाँ मकान बना सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट का रोल है, आई कैन नॉट से, लेकिन प्राइमरली मुझे अपनी सेफ्टी देखनी है, मुझे अपने बच्चों की सेफ्टी देनी है, मुझे आने वाली नस्लों की सेफ्टी देखनी है। इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की ये है कि देयर शुड बी सम रेगुलेशंस जो देयर आर फ्रेमवर्क्स, हमारे कानून है, कायदे कानून है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, दैट्स अ फैक्ट। तो उसमें मुझे लगता है एज इंडिविजुअल्स, एज कम्युनिटीज़, एज सोसाइटी एंड एज गवर्नमेंट हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और एज अ रिजल्ट अगर आप देखिए 2014 का जो मेमोरीज तो बिल्कुल फ्रेश है हमारे दिमाग में, तो देख लीजिए कितनी वल्नरेबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने कहा कि इसका जो नुकसान है चाहे वो प्रॉपर्टीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या हमारे एग्रीकल्चर पर, हॉर्टिकल्चर पर या जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन रुपीस उसका गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट बनाई। अब इट इज़ अ ह्यूज लॉस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम अपने लिए जगह ढूंढे मकान बनाने, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी सेफ। आई मीन वी हैव टू छोटी ही मकान बनाए, 3 मंजिला क्यों बनानी है, एटी क्यों रखना है भाई, छोटा सा एक फ्लैट बनाइए, 3-4 कमरे काफ़ी है, लेकिन अच्छा सा बनाइए और उसको के हिसाब से सेफ होना चाहिए, सैलाब की पर्सपेक्टिव से भी सेफ होना, हर एक डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से सेफ होना चाहिए। और एक चीज़, ये तो सैलाब का हुआ, अभी जैसे पामपोर है, अभी सैफरन भी ज़्यादा नहीं निकलता जितना मैंने सुना। अभी वो ये पुरानों ने बोला है, जो कश्मीरी में कहावत है कि अगर ज़ाफ़रानस नाज़र पे सुशन खसान किन, आई डोंट नो हाउ साइंटिफिक दैट इज़ और नॉट, बट आई सी लॉट ऑफ होम्स कम अप इन दीज प्लेसेस। अगेन एग्रीकल्चर लैंड जो था, जो पैडी वैडी वाला होता था, वहाँ पे भी मकान बना रहे हैं। बट बैक ऑफ द माइंड मेरे को वो है कि इनको तो पानी जाएगा ही जाएगा। यहाँ से सैफरन विच वी कॉल द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसका भी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है, जस्ट बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग होम्स इन दीज प्लेसेस। 10 years ago बहुत जैसे हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, ज़ाफ़रान कॉलोनी है, वहाँ भी अब सिर्फ मकान बनाए, क्योंकि पहले सिर्फ ज़ाफ़रान होता था वहाँ, अब वहाँ मकान में अब वो कॉलोनी हो गया है। Is there a scientific thing why saffron is going down, or you don't know maybe about it? No. There's a reason, scientific reason for this. ऐसा नहीं है, measure की ठीक, मगर there's a science behind it. Obviously there will be. I know, that's why I'm talking to a scientist about it. There's a science behind it. तो अगर आप देखें, जो मेरे हिसाब से, and many scientists, agriculture scientists will agree with me, the single most important reason, अगर आप मुझे कहेंगे एक important reason जो है बताइए जिसकी वजह से सैफरन की प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक डिक्रीज हुई है, आई वुड से द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है, अगर आप कश्मीर में खासकर देखेंगे, इसके जो सिग्नेचर्स है, इसके जो इंडिकेटर्स है, हमारे ऑटम में सबसे ऑब्वियस है, नुमाया है क्लाइमेट चेंज की। आपने देखा होगा रिसेंटली कि 6 महीने हमारा यहाँ ड्राई पीरियड होता है, अगस्त से लेके दिसंबर तक बारिशें नहीं होती है। और ये क्रॉप जो है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अक्टूबर में इसको कुछ रेन्स आनी चाहिए। जो ही अक्टूबर के मिडल में इस पर रेनफॉल होती है, क्योंकि इट्स अ ड्राई सीजन, लीन पीरियड होता है, बहुत कम बारिशें होती है, लेकिन फिर भी होती थी। अब ट्रेडिशनली अगर आप श्रीनगर का देखेंगे, जो हमारे पास डेटा है 1886 से हमारे पास क्लाइमेट डेटा है, आप देखेंगे कि अक्टूबर में भी बारिशें हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से, कुछ दहाइयों से हम देख रहे हैं कि ऑटम हैज बिकम वेरी ड्राई। तो उसकी वजह से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स है कश्मीर में खासकर, ऑटम और विंटर में बहुत नुमाया है। एंड
जो प्रोडक्टिविटी सैफरान की कम हो गई है, बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर इज द लॉन्ग ड्राई पीरियड इन ऑटम, तो उस वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी पर एक ऑटम में मैंने और एक चीज देखा, ऑटम में अगर बारिश भी होती है ना, वो 4 दिन होती है, बहुत होती है, सब होते हैं सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। दैट इज अंडर यू नो, जैसे हमने लास्ट ईयर भी देखा, लोगों की मेमोरीज जो है थोड़ा यू नो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। 2014 में जो हुआ, 2014 में जो फ्लड्स आ गए, एक्सट्रीम फ्लड्स, तो फर्स्ट वीक ऑफ यू नो सितंबर, 3 सितंबर से बारिश स्टार्ट 4 दिन की तो, बारिश हो गई। हाँ, 4 दिन में 620 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, 2.25 फुट यू नो रेनफॉल फेल फ्रॉम द आसमान पर क्यों 1.25 फुट। इसी तरह आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी तो एग्जैक्टली उसी हफ्ते में यू नो ये वी हैड एक्सट्रीम रेनफॉल, तो ऑलमोस्ट बहुत से इलाके श्रीनगर के आसपास भी यू नो फ्लड में आ गए। तो दिस इज वी कॉल इट क्लाइमेट एक्सट्रीम, जो आपने कहा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन द सिस्टम डज नॉट एब्जॉर्ब इट, तो इट ट्रांसलेट्स इनटू फ्लड्स। सो द एक्सट्रीम्स जो है, चाहे वो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल यू नो, तो या जो क्लाउड बर्स्ट्स लोग कहते हैं, दीज यू नो हाई, या कभी अनड्यू स्नोफॉल होती है अक्टूबर में ही, या हेल स्टॉर्म होती है, या कभी यू नो इसमें अप्रैल में स्नोफॉल होती है। दीज आर ऑल क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, तो ये दीज आर अनदर इंडिकेटर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। राइट, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। व्हाट वाज बेटर, एडमिनिस्ट्रेशन और बीइंग एन academician? I think you see, You have been academician for how many years? I mean, just you know, 5 years before I was fully, you know, almost 6 years before I was fully involved into, you know, full-time academician, scientist, researcher. So, yeah, I think, you know, I believe that, you know, that experience and that achievements in research, I have handled many big research projects, you know, at global level, at national level, and at local level also. And I think that was the time you know, a person has to concentrate on the research. Even now, as a vice chancellor, if you see my research interests, I'm deeply into research. You know, still I spend significant part of my time into research. You know, whole, you know, complete day on Saturday I am in my own lab. I have a lab at the University of Kashmir. It's a National Ice Core Lab, Center of Excellence for Glacier Studies at the University of Kashmir. I almost spend 1.5 days there, Saturday full and sometimes, you know, Friday also. And whenever I get a time in the evenings, in the other time, I'm into. So I'm still, you know, I would say, still a scientist. Very active researcher still. But at the same time, as the vice chancellor of a university, I think I enjoy spending time on strategizing, developing action plans, you know, looking into new ways of transforming a university ecosystem into you know, into sort of a culture of innovations, entrepreneurship that is provided under the NEP, National Education Policy 2020. I think that gives me a lot of satisfaction also. What are you doing? For example, we always read the news and there's 20% unemployment in Kashmir. There's 25%. How is Islamic University trying to change that? Or is there a way we can do something about it? Because you see, in today's world, you will see a job profile. लेकिन हर किसी को एक्सपीरियंस बनना चाहिए। फ्रेशर तो कोई लेता है नहीं, बहुत कम होते हैं जो फ्रेशर्स को लेते हैं. So are we doing any skill programs here or making them learn, doing internships or sending these guys outside to get more exposure and get into industries and something like that? Well, I will tell you that as a Vice Chancellor, this should be, and this is my priority, one of the very important priorities. Now, if you see that, even in the last 4 years' time, we had we have a significant increase in the placements. Okay. Now, if you look at the placement record, just, it is a established record supported by data, we had 28% placement, few years back. Now we have 75% placement. Oh, nice. 75%. But if you look at the, challenges,
in Jammu and Kashmir, particularly Kashmir Valley, there are significant challenges for the placement of our youth. Having said this, but there are significant challenges, and it has to do a lot with our, economy. It has to do a lot with our culture. It has to do something with our politics also. So you see, many of our youth are not ready to go for the, jobs outside Jammu and Kashmir. That's one big challenge. But that mindset needs to be changed. Yeah, we are trying to do that, you see. So that is one way, the government, this is a priority of the government, this is a priority of the universities. We do many placement drives here, but many of the, students who get selected, they don't join those, companies, or that's one part. Here, most of our youth look up to government jobs, that is one. The other thing is, with this scenario, I think the universities are focusing on building the capacity of the youth in, innovations, in entrepreneurship, in startups. I think that culture, if you look at the IUST also, we have been consistently recognized as a 4-star institute in promoting this type of ecosystem in startups and innovations and entrepreneurship. If you look at the IUST, we have been able to set up several incubators where we try to boost the creativity of the youth. I feel that in the long run, this is the way out. That if we really want to give employment, I would say respectable employment to our youth, we will have to promote the local, local startups in areas of, let's say, agri-tech, let's say in, handicrafts. Correct. So some of these, issues that our economy faces, tourism. So there are certain sectors of economy where I feel that the universities have to rise to the occasion, Correct. boost the creativity, boost the skills, build the capacity of our youth in these areas. I think this will be a game changer. One thing about youth in Kashmir, if they are not joining, so मुझे कभी-कभी समझ नहीं आता है, लोगों को लगता है शायद कि हमने डिग्री कोई कर ली तो पहले महीने ही 1 लाख रुपए का जॉब लगेगा. So because it doesn't happen that way. I was out of Kashmir for 5-6 years, so I know deep down कि how it works. कि आप 10,000 की सैलरी पे हो, फिर अगले साल आप 15 पे जाते हो, फिर आप 30 पे जाते हो. It comes with experience, and जितना आपका फिर skill होगा. Nothing happens overnight or in one day. Maybe these things need to change. Number 2, I see people writing resumes, but वो लिखना नहीं आता है वैसे जैसा वो होना चाहिए. Number 3, we take internships for granted in Kashmir. So I get a lot of guys to my office and they like internship, and I have 2 things for them, and I'm like, अगर सीखना है, so you have to come here every day at 10 in the morning and leave at 5. Or if you just want a certificate जो आपको कॉलेज में दिखानी है, just let me know about that. क्योंकि 2 टाइप्स की ऐसी चीज़ें होती है. बट आई लाइक पीपल हु वांट टू लर्न एंड हु आर क्यूरियस कि ये चीज़ कैसे है, क्यों होती है, कैसे होता है. एंड आई हैव सीन दोज पीपल एक्सेल इन लाइफ. सो आई थिंक मे बी इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर प्रॉब्लम, एंड पीपल don't need to, or these young students don't need to rely on government for everything, क्योंकि government jobs है नहीं है. एंड इन अ गवर्नमेंट जॉब मे बी आप उतना फिर एक्सेल या स्किल अपना डेवलप नहीं कर पाते हो, क्योंकि गवर्नमेंट में वो पेपर वर्क है या क्या है तो वैसे चलता है. बट आई थिंक कश्मीरीज, because young boys, girls should move out of Kashmir because there is a lot of exposure outside. Bangalore, Hyderabad, Delhi, or even Dubai. And okay, Dubai is a different thing right I think that's very important, that we need to encourage the students, encourage our students to go all over the world, not only the rest of the country. You went to Tokyo in 19 Yes. what was it, 80s, 90s? I went in 90s. It was So 90s. that's the whole point. Yeah. Now, see, in the university, a lot of things are being done in this regard also. हमारे यहाँ अगर आप IUST में देखें, कश्मीर यूनिवर्सिटी में देखें, जम्मू यूनिवर्सिटी में देखें, किसी भी यूनिवर्सिटी में, it is very important to have certain percentage of attendance in the class. 75%. 75%. We give some relaxations, but we don't allow anybody to go
to exams if he does not. I know, I have been there. मेरे साथ हुआ है. 65. मेरे साथ हुआ है. Now, at the same time, keeping in view this, that degree लेके एक बच्चा निकला है यहाँ 4 साल के बाद, he is not employable. Correct. The industry does not find him employable क्योंकि ये fresher है, इसको कुछ 90% मार्क्स है, 80% हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी स्किल्स बताइए क्या है. Correct. तो he is not able to demonstrate. लेकिन आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर उसको 2 सेमेस्टर भी इंटर्नशिप मिली, मान लीजिए 8th सेमेस्टर बीटेक का स्टूडेंट जो है 8 सेमेस्टर में, अगर उसको 7th सेमेस्टर में इंटर्नशिप मिली दुनिया के किसी भी कोने में, he can leave from a university, go for 1 year complete, go for 1 semester, go another semester. उसकी हम जो है अटेंडेंस बिल्कुल मैंडेटरी नहीं रखते. He has to go, but he has to, जैसे आपके यहाँ जाएगा वो इंटर्नशिप करने, तो उसको तो हमें आपसे अटेंडेंस लेनी होगी. As you said, he has to come every day there. सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा. तो दूसरी बात है, the objective is कि क्लासरूम से बेटर उसको है कि हैंड्स ऑन वहाँ ले एक्सपीरियंस हो जाए और उसको जॉब भी मिलेगी. हो सकता है जिस कंपनी में उसने 6 महीने काम किया है इंटर्नशिप या 1 साल, वही उसको, तो वो कहते हैं हमें 80% 90% ज़रूरत नहीं है, 60% से. और उस बच्चे को हम यहाँ एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आना है, he has to prepare himself, for these courses. He comes and gives the exam, gets a certificate and a job also from there. So this is something we have been implementing in this university for the last almost 2.5 years now. So yeah, I think this is and then they connect with the industry. So that is also very important for every university. That you will see that in our board of studies, you have the industrialists, they come, and also we are increasing the interactions of the students. We make them to visit to the industries, or we bring the industrialists to share their experiences with them. I think this is very important. और मेरा ये पूरा belief है कि जिस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% हो या 90% हो, उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है. उसको एडमिशन तो लोग खुद आएंगे. I think this is something what we are trying to do, and that's a very important focus for us. पता है इन्हीं फ्रेशर्स में मैंने एक चीज़ देखा, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ है, they were studying in GCET Gandarbal, and then they came to me for an internship and everything, and I trained them and they liked it, and today they have been working with me for 2 years 3 years, and ऐसे ही हम internship से ही हम निकालते हैं कि ये बच्चा है कि ये कुछ कर सकता है. So I have always been of this opinion कि हमें वो चीज़ें छोड़नी हैं कि अब हम बीटेक कर लिया, अब हम एमटेक करेंगे, उसके बाद हम PhD करेंगे, ये करेंगे. Hands-on industry experience, as you also said, is very necessary today, and every college, every university needs to follow maybe your footsteps. क्योंकि चलो I don't know यहाँ role कितना होगा. I know you have 84 subjects that you teach here, but Kashmir University is maybe 10x more. बट मैंने तो कभी नहीं देखा है कि वहाँ इतनी प्लेसमेंट्स होती है, यहाँ इतनी जगहों पे इंटर्नशिप्स होती है. क्या मैंने हमेशा देखा कि जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती है ना, फिर वहाँ बच्चे को उतना ना नज़र नहीं रख पाते हैं. जितना ज़्यादा रोल हो जाता है फिर वो उतना उनको कर नहीं पाते. आई थिंक दोज थिंग्स मे बी नीड टू चेंज. यू हैव स्टार्टेड इट हियर, थिंग्स नीड टू बी डन इन KU एंड IUST जो है, इट इज़ प्राइमरली अ टेक्नोलॉजी फोकस. हमारे कोर्सेज भी जितने भी हमने नए कोर्सेज भी लाए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हमारा एडमिशन जो है करीब पिछले 2 साल में 70% इंक्रीज हुआ है. एंड देन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कोर्सेज इन दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. दैट इज़ द करेंसी. हर जगह वही चलती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताऊँ, द एक्सपोजर दैट आई हैव एट द इंटरनेशनल लेवल, कोई ज़रूरत नहीं है मास्टर्स जाने की, कोई ज़रूरत नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए PhD जाने की. I have studied in some of the best universities in the world. तो मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट भी बाहर ही किया है, पोस्ट ग्रेजुएट भी बाहर किया है, PhD बाहर ही किया है. तो बहुत कम लोग मास्टर्स और PhD के लिए जाते हैं. मैक्सिमम लोग, आप यूरोप की देख लीजिए, ईस्ट देख लीजिए, जापान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, आई वुड से प्रीडोमिनेंट 90% से भी ज़्यादा अंडरग्रेड के बाद ही जॉब्स करते हैं. बड़ी अच्छी खासी जॉब मिलती है उनको, स्किल्स होते हैं, उनको
दे आर एम्प्लॉयबल। बहुत कम लोग, एक स्मॉल परसेंटेज मास्टर्स की तरफ जाता है। और फिर बाहर अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में देखेंगे वहाँ आपको अमेरिकन नहीं मिलेगा पीएचडी का, करेक्ट, वहाँ साउथ एशियन वगैरह से होता है, चाइनीज और correct, साउथ एशियन correct, नहीं मिलेगी। यूरोप में भी वही हाल है। कोई क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक है कि पहले तो जब हमारे अंडर ग्रेजुएट बीएससी या बीए करके बच्चे निकलते, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मास्टर्स में कोई भी यूनिवर्सिटी में वो उनको एडमिशन मिलता है, मुफ्त में मिलता है। 5,000 10,000 रुपया कोई साल का फीस है, ऑलमोस्ट फ्री है। तो घर वाले भी कहते हैं चलो कर जब लो तक जॉब मिलेगी तो मास्टर्स MA कर कर लो। लीजिए। हमारी यूनिवर्सिटीज उसी से चलती है। तो फिर जो है आप देख लीजिए यूके की यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए कौन मास्टर्स वहाँ करता है। इंडियंस होते हैं, कश्मीर के भी बहुत है, I know। कोई नहीं करता है यूके में मास्टर्स कोई नहीं, बस अंडर ग्रेजुएट किया, जॉब कर ली, दैट्स इट, एक्सपीरियंस मिल तो गया। हमारे यहाँ से लोग जाते हैं मास्टर्स के लिए 40 लाख 50 लाख रुपये दे देते हैं। तो पीएचडी में जब जाते हैं तो क्योंकि मास्टर्स में जॉब नहीं मिली तो लोग जो है मोस्टली, देयर कुड बी गुड रिसर्चर्स आल्सो, बट मोस्टली इसीलिए वो कि तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे, कुछ का असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। लेकिन बहुत लोगों का ये होता है कि भाई अंडर ग्रेजुएट में जॉब नहीं मिली, पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं मिली, तो शायद पीएचडी करके कहीं से। अभी हमारे यहाँ इंटरव्यूज होते हैं हर जगह। तो एक जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने अभी इंटरव्यूज की, जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ बहुत से पीएचडी थे, बहुत से पीएचडी थे। तो हमें तो पीएचडी नहीं चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर दिस सिस्टम। लेकिन यह है कि दैट शोज देयर इज नो कन्विक्शन इन हिज रिसर्च। वो इसलिए रिसर्च में गए क्योंकि जॉब नहीं। दिस हैज टू बी corrected. I think this is very important for the academic administrators, for the policy makers of this place. We really need to completely revamp the way we have been imparting the. It has not to be examination centered. It has not to be only for the degree. It has to more focus on making them employable. Correct. Skillful. उनको आना चाहिए। I mean the uncertainty we face in the real world. हमारे बच्चे के पास 90% होती है मार्क्स, लेकिन he is not able to face anything. Yeah, he is not able to crack the interview क्योंकि उसको practical knowledge ही नहीं है। ट्रैवल करना भी नहीं आता है। I mean lot of you see real world में जो problems आती है बच्चों को हमारे, they are not able to handle it. True. तो 100%. I think the reason is that we don't basically focus on all round development of their personalities. Maybe again एक certain point पे मेरे को ये लगता है कि we Kashmiris live in a comfort zone. We have our parents' homes कि हमें पता है कि घर है, कि हम comfort zone में रहते हैं. As compared to people outside जम्मू कश्मीर, जैसे दिल्ली हो गया, एक छोटा सा फ्लैट है, 5 बंदे वहाँ रहते हैं. They know the hardships. They go out, they do work. यहाँ मैंने देखा है बहुत laid back attitude है कि ठीक है चल रहा है, अब देखते हैं, अब बीए कर लिया, अब एमए कर लिया, अब पीएचडी करते हैं. एंड मुझे नहीं पता कि कितना प्लेजराइज्ड भी होता होगा थीसिस यहाँ, कि कितने ही कर पाते होंगे उतना. अब तो नहीं होता है क्योंकि अब तो ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि थीसिस जो आपने लिखी है इसको तो यू विल हैव टू इवैल्यूएट इट फॉर द प्लेजरिज्म. वो ऐसी बात नहीं है. लेकिन ये है जो आपने कहा, मेरे ख्याल से आई डोंट सी इट इन कश्मीर स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अगर आप साउथ एशिया में ही देखेंगे तो ये इस टाइप का कल्चर है कि वो जो बहुत ही प्रोटेक्टेड हमारे बच्चे होते हैं. हो सकता है हमारे कश्मीर में भी ऐसे कुछ फैमिलीज आपको मिलेंगे बहुत सारी जो बहुत ही आउटगोइंग है, देयर चिल्ड्रन आर नॉट टू प्रोटेक्टेड. लेकिन बहुत ऐसे भी है जो प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. तो उससे दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड. ही इज नॉट एबल टू रियली explore the world basically. Explore the world. He's not able to really face those real world challenges. जब उसके घर में कुछ होता है, he's not able to do anything, other than he has 99.9% marks. उसके पेरेंट्स भी उसी ग्लोरी में रहते हैं कि our child has 98. बाकी उसको रियल वर्ल्ड जो एक्सपोजर है वो बहुत कम मिलता है. लेकिन और ये तो हमारा कल्चर है, नॉट ओनली कश्मीर, आई विल से साउथ एशियन कल्चर है कि बच्चे तो शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं. तो वो सपोर्ट उनका जो एक कंफर्ट जोन जिसको आपने कहा वो तो है ही. आई मीन दैट फैमिली इज वेल नीट और वो उसके भी अपने फायदे. आई थिंक दैट्स आल्सो नॉट, बट कभी कभी जो ओवर प्रोटेक्शनिज्म जो है जो हम करते हैं बच्चों को, तो दे आर नॉट रियली एबल टू इवॉल्व एज द आई वुड से द सक्सेसफुल सिटीजन्स किसी भी लिहाज से. तो
लाइफ में उनको बहुत प्रॉब्लम्स फिर आती है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, आई थिंक वी ऑल नीड टू बेसिकली join hands Join hands and boost the creativity, preserve the creativity, give, you know, Independence to guys to do something. Give our children exposure to the real world problems. Assignment based, problem based learning. So you have to, you know, हमारे बच्चा जो है, he should know कि how does a government office work. You know, Correct. he should have some internship as a student, as a school student, Correct. in an office In an or in a, office. you know, block development office or district office or tehsil education office. At least he knows कि होता क्या है अंदर. hota kya hai. You know, that is the education that we get in Europe. That is the education we get in Japan or in the North America. तो हमें लग रहा है कि they are connected to the ground. यहाँ पर तो यही है कि by examination में disconnected है. you have to see that how do they get 98%. आपने अभी रिसेंटली एक ट्वीट भी किया था कि एग्जाम सेंट्रिक या मार्क सेंट्रिक बच्चों को नहीं रहना चाहिए, एंड आई लव दैट ट्वीट बिकॉज यहाँ के एजुकेशनिस्ट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमेशा मार्क्स 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 पे, या हमारे पेरेंट्स भी. I think I have a problem with the parents here. You know, ये एक social status. You know, it has become a status symbol. हाँ, कितने परसेंट आए? कि 99. मेरे बेटे को, you know, 99.9% मार्क्स है. जिस पेरेंट के बेटे का बेटी को 90 से ऊपर नहीं होते, they feel they are not able to, you know, really, they don't boost it, they don't talk, they don't go to the social functions. I think the society, you know, really, you know, is valuing this type of an education. Now, of course, our system has been like this, that, you know, GOTA system, the root, you know, learning. So I think memorizing, this is the way, I mean, our education system has been. So I'm sure that, you know, if we switch to this, जो मैंने कहा problem based, assignment based, real world exposure and all that, you will see the overall development of our, you know, children, of our youth will see a, you know, major transformation. Correct. How do they see the real world? How do they address it? How do they approach it? I think, I'm sure the NEP National Education Policy 2020, that is the crux of it. The major, you know, demand of this national education policies to change the way you have been teaching. The pedagogy. I mean, it has to be not, I mean, आजकल के टाइम में अगर आप YouTube अपना बेटा है, बेटी है, तो if you can easily guide him if you just use the material resources on That is available YouTube, online. Coursera, Khan Academy. Correct. I think the teachers have to also change. The role of a teacher has to change. So it has to be the way I said that, you know, he has to be a mentor, he has to be a guide, he has to take, you know, I'm take on many roles. टीचर्स को भी एक ये है ना कि what they are teaching, it is a textbook thing. अब practically life में तो बहुत change हो गया है, you know, in last just 4-5 years, जब से AI बहुत mainstream हो गया है, you don't need to learn anything from, you know, जैसे पहले बुक से पढ़ना होता था या कुछ भी. You open your phone, अगर आप वॉइस सर्च भी करेंगे वो आपको बोल देता है कि ऐसे ऐसे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे है. Education has become easier as compared to maybe what it was at my time, जब इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम था, और when you have done your, for example, research. क्योंकि आपने एक एक चीज़ लिखा होगा तब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था. आज तो हम मतलब 80% चीज़ें जो मैं आज यूज़ करता हूँ, आई यूज़ AI फॉर दिस. जब आपने अपनी थीसिस लिखी होगी तब AI नहीं था. Exactly. तब इंटरनेट भी बहुत कम होता. Yeah, there's a, you know, करेक्ट. I would say information explosion, knowledge बहुत. resources जो है हमारे पास इतने है. It is not only, I mean, it is there for last, you know, so many years now, but basically the, you know, entry of these emerging technologies like artificial intelligence, machine learning, I think that has really revolutionized, you know, the way one can think about. I think it is, I mean, that's what I say, that if you look at the Islamic University of Science and Technology, many of the courses, in 2 years we introduced about 13 courses, undergraduate courses, many of them in the emerging technologies, like artificial intelligence, data science, machine learning, robotics, space technology. And we are seeing a lot of, you know, interest of the students. I think we really have to focus on that. You know, it is not only the
science and technology courses. Even a student of my Arabic department, a student of Islamic department should know how to use these emerging technologies, AI. चाहे आप जर्नलिस्ट बनना चाहेंगे, चाहे आप कुछ भी क्लर्क बनेंगे कहीं, so you can't really escape from the use and application of these technologies. If you want to be an evolved person and a competent person, I think that is what we are doing. You know, I want to start a course of जैसे journalism है हमारा. I have been talking to my colleagues at the journalism. Let us start a course, journalism and AI. AI and philosophy, you know, so you have to link this is the currency. Correct. I mean, you will have to have a, you know, journalist who is very, very apt, you know, very comfortable in using these AI. emerging technologies, AI and all that, in a very positive way. way. So I think the institutes, I think we have to, you see, what is relevant today, what is relevant this year in 2026, I'm sure it will not be relevant in 5 years or 10 even the years. degrees, even Yeah, the degrees. Many of the degrees have to change. If I want to have something, I just bring in these. I mean, that is the currency. That is what people want to. I mean, what I could have never imagined it, you know, when I was a student, AI that I is could a- have even an access to a smartphone. Smart. Correct. I mean, I used to call, you know, when I was a doctorate student, master's student, using the coin phones and all that, spending a lot of money on, you know, calls and all that. I mean, now Now you can simply video call. you can have a video call free of cost, and the whole day you can sit on it. And now look at similarly, if you had to really draft a press note or draft some AI concept करके note, देता है 1 minute में. You have just to write it down. really, You know, just give me this. it was a domain of the most intelligent people, only most competent people. Now, if you have some sense of that issue, some Prompt engineering आनी चाहिए, that's it. prompt, you just have, you know, what you have to prompt to the AI, so you get the right, you know, concept. I once heard a podcast by Elon Musk, and he was like, degrees don't matter, but you going to college does matter. Because in college you socialize. Yeah. And socializing is necessary. Exactly. I see in everyday life, हम जब अभी आए, so we came in 2 cars and there were 4 guys in 1 car and हम 2 गाड़ी में थे, and वो wait कर रहे थे हमारा. And मैं जब गाड़ी से उतरा, चारों के हाथ में फ़ोन है, हर कोई फ़ोन के साथ है. मैंने कहा यार सोशलाइज करो, फ़ोन जेब में रखो, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू सोशलाइज. आई पर्सनली केम हेयर टू सोशलाइज, टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू, टू लर्न फ्रॉम यू. क्योंकि हाँ, मैं ऑनलाइन यूट्यूब खोल के मे बी आपका कोई लेक्चर देखूंगा या कुछ, बट आई पर्सनली वांटेड टू कम एंड सी एंड टॉक टू यू. मैं फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में दिस इज़ माई लर्निंग एक्सपीरियंस. हाँ, AI मेरे को 10 चीज़ें देगा, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट से बात करूँगा जिसको एम्पिरिकल डेटा है, जिसको पता है चीज़ें, जो वैलिड पॉइंट्स है. आई विल गेट देम ऑन रिकॉर्ड सो दैट 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन मैं बोल सकूँ कि हाँ, इस टाइम पे ये हुआ था. अब लोगों ने नहीं माना, वो हमारी गलती नहीं है. बट इट वॉज रियली I'm actually thankful to you for giving me so much time. Thank you. It was a lovely experience. I came back to my university. I came here 13 years later. We just had this building, and this building, and हम यहाँ पे बैठते थे. 200-250 स्टूडेंट होते थे. We knew everybody, professors, teachers. हाँ, VC सर से कभी बात नहीं हुई थी क्योंकि डर लगता था, बिकॉज उन दिनों नई मूवी आई थी वो 3 Idiots, एंड उसमें वो वायरस होता था जो वो VC या प्रिंसिपल होते थे. And the kind of things, and so I was always scared. Oh my God, VC, I cannot come. Today you have a different experience. I have a different experience with the VC. Thanks a lot. Yeah, you know, things have changed. हमारा एक perception होता है कि maybe crazy है, but when you go ahead and meet and talk, and then you realize कि no,